Hi guys, welcome to the channel. Guys, while you're watching a lot of videos related to SEBI on YouTube, you would have observed one thing for sure. There are a lot of videos related to, say, strategy for SEBI, 3 months, 6 months study plan for SEBI, books for SEBI, or you can say salary for SEBI, all these things, job profile of SEBI. So ऐसी videos बहुत मिलेंगी, but there is really dearth or there is lack of videos on the strategy of different subjects, how to prepare for a particular subject. वैसी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी. So I think EduTab needs to fill this gap. We are coming out with videos of how to prepare for different components. So एक component की discussion हम एक ही वीडियो में करेंगे, so that we can open it up, we can discuss all the aspects, all the perspectives related to that component. तो इस वीडियो में हम मैनेजमेंट से शुरू कर रहे हैं, राइट? सो वी विल डिस्कस के सेबी में मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, ओवरऑल वेटेज, व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, what topics or what chapters of your syllabus are important. Within those chapters, what are the subtopics that you need to do, what type of questions have been asked, what are the good sources, how to revise, how to make notes, everything. So जैसे मैंने बोला, we are going to open it up so that you get end-to-end clarity. I think this is something you will get nowhere. Super strategy for management for SEBI grade A, complete solution है. तो डिस्कस करते हैं. एंड बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं. दिस इज SEBI grade A assistant manager comprehensive guide. So if you're preparing for SEBI, I'm sure you're looking for a lot of information, right? कि SEBI करती क्या है, SEBI में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, प्रमोशन हायरार्की क्या है, प्रमोशन कितनी देर में होती है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, SEBI के एग्जाम से रिलेटेड व्हाट आर द डिफरेंट phases, in every phase what are the different subjects, what is the weightage of different subjects, what is the syllabus of different subjects, कट ऑफ्स क्या गई हैं, व्हाट आर द गुड रिसोर्सेज और बुक्स टू प्रिपेयर फॉर सेबी, सैलरी क्या है, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, एंड यू स्टिल वोंट बी गेटिंग डेफिनेटिव आंसर्स. टाइम वेस्ट अलग हो रहा है, बट थ्रू दिस गाइड बुक आपको आपके सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल डेफिनेटिव आंसर्स मिलेंगे, एक्यूरेट रिसर्च्ड आंसर्स मिलेंगे, जो आपको बता देंगे कि यस दिस इज द ओनली थिंग यू नीड इट. तो आप इसको आज ही डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेबी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेबी. डाउनलोड कहां से होगी? बहुत सिंपल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, देयर इज अ लिंक, क्लिक ऑन दैट, डाउनलोड इट, एंजॉय इट. चलिए अब मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं सेबी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द सिलेबस. Syllabus and PYQs are like two pillars on which your entire preparation will stand. PYQs मैं बाद में डिस्कस करूंगा. Let's start with the syllabus. So if you see the syllabus for management for SEBI, मोटा मोटा you have 5 major chapters. Rest are the subtopics. Management, leadership, HRD, motivation and communication. ये मोटा मोटा आपके 5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं. Rest are the subtopics inside these chapters. Now syllabus बहुत कम है. First of all you need to realize that syllabus is very less as compared to other subjects such as accounts or costing or say finance. But weightage बहुत अच्छी है. If you see the weightage of management in SEBI grade A exams that have been held in the past, weightage बहुत अच्छी है. 2020 में फेज 1 में 4 क्वेश्चंस आए थे. ये थोड़े कम है बिकॉज इफ आई डिवाइड 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 2 में, 50 by 6, there are 6 subjects. Total is around 8 questions per subject. But यहाँ पे 4 आए because this paper was really weird. There was some out of syllabus questions from computer, current affairs. I mean weird paper. इसको छोड़ देते हैं. If you go to 2020 phase 2, 9 questions. 2022 phase 1 8. 2022 phase 2 8. So you can see that's a huge weightage here. एक कम सिलेबस से भी आपको बहुत अच्छा वेटेज मिल रहा है. दैट इज अ रियली गुड चांस कि आप इतना सा पढ़कर इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एंड रिमेंबर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ योर एंटायर सिलेबस. बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, ठीक है, पढ़ के समझ आ जाता है. इट्स नॉट लाइक अकाउंटिंग दैट आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे. ऑफ लेट कुछ क्वेश्चंस थोड़े कंसेप्चुअल आ रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस भी बुकिश ही आते थे पहले, बट थोड़ा लेवल रेज हो गया, बट दैट कैन बी मैनेज्ड इजीली. तो द पॉइंट इज कम सिलेबस, ज्यादा वेटेज, इजी सब्जेक्ट, दैट इज व्हाट वी नीड. व्हाट एल्स वी नीड? तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना है. अब
अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात आती है। वैसे तो देखिए आपका सिलेबस इतना सा है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, यू शुड बी डूइंग ऑल द चैप्टर्स विदाउट फेल। 8-9 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, यू गेट दोज 8-9 क्वेश्चंस राइट, यू स्ट्रेट अवे स्कोर 18 मार्क्स, और क्या चाहिए। बट स्टिल मैं आपको वेटेज दिखा देता हूं डिफरेंट चैप्टर्स में से। हाईएस्ट वेटेज इज फॉर जर्नल मैनेजमेंट, जिसमें से 11 क्वेश्चंस आए हैं टोटल। हियर आई हैव ब्रोकन इट अप। 2021 फेज 1 में कितने आए, 2020 फेज 2 में कितने आए, 2022 फेज 1 में कितने आए, 2022 फेज 2 में कितने आए। So journal management has been their favorite topic, and that can be really seen if you see the previous year questions. हर पेपर में जनरल मैनेजमेंट से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। बाकी मोटिवेशन में से 5, कम्युनिकेशन में से 4, लीडरशिप में से 6। आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 टॉपिक्स। HRD हैज बीन अ लिटिल लैगार्ड हियर, 2 ही क्वेश्चंस आए हैं, बट अगेन वी कैनॉट एज्यूम दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो। नेक्स्ट ईयर यू गेट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम HRD। सो इसको आप कर लीजिए, बट मे बी आप बाकी टॉपिक्स को पहले कीजिए, HRD को थोड़ा लोअर प्रायोरिटी पे रखिए। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट विल लेट अस नो दैट व्हाट शुड बी माय ओरिएंटेशन। सम क्वेश्चंस आर रियली डायरेक्ट, जैसे परफॉर्मेंस अप्रोच टू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड व्हाट, कैरेट स्टिक अप्रोच। O in SWOT stands for opportunity, very simple। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट कभी कभी ये मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एंड दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट SWOT इज, दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट SWOT इज, बट सडनली दे आर नॉट एबल टू क्रैम के O का फुल फॉर्म क्या था। कि ठीक है, SWOT में हम स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ऐसा कुछ एनालाइज करते हैं, बट O का फुल फॉर्म क्या था, दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर, क्योंकि उन्होंने समझा था, उन्होंने कुछ क्रैम नहीं किया था। तो यहां पे हमें थोड़ा सा हर चीज को क्रैम करना पड़ेगा, बिकॉज ये इजी क्वेश्चंस हैं, इनको हम गलत नहीं कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके एग्जाम में बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का। इफ अ मैनेजर इन्फॉर्म्स एम्प्लॉयज ऑफ पॉलिसीज एंड रिलेटेड स्टफ, देन द रोल प्लेड बाय हिम इज दैट ऑफ। अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को, जूनियर्स को पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, तो वो डिसेमिनेटर है, स्पोक्स पर्सन है, क्या है। लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज बिटवीन डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। दिस वाज क्रिएटिंग अटर कंफ्यूजन। बट अगेन, इफ यू हैड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, it is very well described in the theory that disseminator is who basically disseminates the information within the company. Spokesperson is somebody who basically interacts with the outside world. तो यहाँ पे आंसर डिसेमिनेटर था, बट बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा था हमने। बाकी काफी क्वेश्चंस बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं, दे आर नॉट बुकिश, एज इन यू विल नॉट फाइंड दोस टर्म्स इवन इन एनी ऑफ द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने एक क्वेश्चन पूछे थे, again on the roles, synergizing role, balancing role, linkage building role, ये किसी बुक में नहीं है। ऐसे ही communicator, networker, strategist कहीं नहीं मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड बुक में, but these are based on understanding। तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसने ये क्वेश्चन कर लिए थे। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी गाइस? इट कैन बी रियली शार्पन्ड अप ओनली बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ MCQs। बहुत सारे MCQs करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी पीपल कवरिंग द थ्योरी एंड सॉल्विंग सम 5, 10, 20 MCQs on every chapter. That is not enough. You should be doing MCQs like there is no tomorrow. इतने MCQs करके जाएंगे और हर MCQ में दिमाग लगेगा, the concepts will get sharpen up in your mind and then you will be able to handle anything in the exam. तो ये चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, solving lot of MCQs is the key to clearing SEBI. So that was about type of questions. अब कुछ सब टॉपिक्स की बात करें तो this is what you can find in journal management. There have been lot of questions asked on the Mintzberg rule. तो Mintzberg rules को अच्छे से पढ़ लें। मोटिवेशन में almost every year there is one question on morale and motivation. Communication में there are a lot of questions that have been asked in the previous year on communication barriers. बाकी लीडरशिप में लीडरशिप स्टाइल से ही ज्यादा पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट that should not be taken as something कि आपको यही करने हैं। But yes, this can be revised again and again, but you have to cover entire set of subtopics that are given in your syllabus. Sources की बात करें तो I mean many people might be reading from the internet, from the courses, but जो self preparation कर रहे हैं उनके लिए I would say these are some of the good books which has to be read selectively. You don't have to read everything. For first topic of your syllabus, management, where you have to study functions of management like planning, controlling, staffing, L.M. Prasad is a good book.
Principles in Practice of Management. Then for topics like motivation, leadership and communication, another book by L.M. Prasad on organizational behavior. And then there is a topic called HRD. For that also I am recommending you a book by L.M. Prasad. तो तीनों मैं L.M. प्रसाद की बुक्स रेफर कर रहा हूं, अच्छे से पढ़िए, सेलेक्टिवली पढ़िए, वेरी गुड ऑथर, यू विल एंजॉय रीडिंग देम अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिवीजन कैसे करें? मैनेजमेंट में रिवीजन होल्ड्स द की, वैसे सारे कंपोनेंट्स में ही रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैनेजमेंट में देयर आर मेनी थिंग्स विच लुक सिमिलर, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, डिफरेंशिएट देम, फॉर दैट रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे आसान तरीका तो रिवीजन का है कि आप जब भी किसी चैप्टर के एमसीक्यूज करें, डू देम 7 days आफ्टर यू हैव रेड दैट चैप्टर। इमीडिएटली मत करें, बिकॉज जब आप 7 दिन बाद उस चैप्टर को करेंगे, द कंसेप्ट्स will get revised in your brain automatically. It will tickle your brain to fetch something from the permanent memory. तो वो चीजें जब आप परमानेंट मेमोरी से फेच करेंगे, वो और भी परमानेंट हो जाएंगी आपकी मेमोरी में, और इससे आपकी रिटेंशन भी टेस्ट हो जाएगी। एंड वॉट एवर यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ड्यूरिंग द टेस्ट, आफ्टर द टेस्ट इमीडिएटली गो बैक, रिवाइज देम अगेन, दैट विल अगेन मेक इट मोर रिलायबल फॉर यू टू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आप जरूर टेस्ट कीजिए, that attempt the test after reading the chapter, after 7 days of reading the chapter. दूसरा रिवीजन कैसे कर सकते हैं? एक तो आपको रिवीजन, if you are reading through EduType course, you don't have to read the entire concept notes, just read the summary sheets for revision. And I have a very simple formula to revise, DWM approach. What I call is, whatever you read daily, revise it that day only, then revise it after 1 week, and then revise it after 1 month. See, statistics shows that whatever we read, an average person forgets 70% of that within 1 week. So this kind of revision is very very important. Same day, 1 week, 1 month, 3 times, that's it. You will not forget that for 1 year then. और इसको implement करना मुश्किल नहीं है. It is not that time consuming, but it requires a lot of planning. Planning कैसे होगी? आप एक डायरी ले लीजिए, उस डायरी पे कैलेंडर बना होता है ना? तो जो आपने फर्स्ट को पढ़ा है, सपोज 1 अक्टूबर को, ऑन द 8th अक्टूबर पेज इन योर डायरी राइट दैट आई हैव टू रिवाइज दिस, एक हफ्ते के बाद। देन ऑन द 1st नवंबर पेज इन योर डायरी राइट दैट आई हैव टू रिवाइज दिस अगेन आफ्टर 1 month, राइट। 1st अक्टूबर को जो पढ़ा, तो आपको 8th अक्टूबर वाले दिन याद आ जाएगा, इसको रिवाइज करना है थ्रू दैट डायरी। फिर 1st नवंबर को फिर यू विल बी एबल टू रिकॉल इट दैट आई हैव टू रिमेंबर। सो देयर हैज टू बी प्रॉपर डिसिप्लिन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर डायरीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट दिस अप्रोच। टाइम कम है तो मे बी डेली और वीकली रिवाइज कर लीजिए, मंथली यू कैन डू अवे विद इट, बट स्टिल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नाउ आई हैव अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हियर। मोस्ट ऑफ द मेंटर्स विल टेल यू मेक नोट्स, बट आई थिंक व्हेनेवर वी डू समथिंग इट हैज टू बी फीजिबल, एंड नोट्स मेकिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर आपके पास टाइम है, आप जरूर बनाइए, नोट्स मेकिंग से कुछ नुकसान नहीं होगा, बट अगर टाइम नहीं है, इसको बिल्कुल मत करिए। देयर इज अ वेरी इजी वे टू डू इट। अगर आप स्पेशली अगर आप हमारे कोर्स में हैं तो बिल्कुल भी मत बनाइए, देयर इज अ वेरी इजी वे टू डू इट। तो टाइम को जरूर कंसिडर कीजिए। दूसरी हैबिट होती है, अगर आपकी हैबिट है कि आपको नोट्स बनाए बिना याद ही नहीं होता है, देन ऑब्वियसली यू नीड टू मेक इट, बट देन अगेन प्रोवाइडेड यू शुड हैव टाइम। नहीं तो आप अपना मतलब टाइम भी नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं, करना सब कुछ है, टाइम नहीं है, वो तो नहीं होगा, राइट। यू नीड टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। तो दोनों चीजों को कंसिडर कीजिए। मेरे हिसाब से टाइम अगर है तो बना लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बट जो लोग हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, राइट, I would just tell them, यार, you have paid good amount of money to buy this course. Now everything is being provided to you in form of summary sheets. तो आप इसको क्यों नहीं यूज करते हैं? आप समरी शीट को प्रिंट लेकर उसमें हाईलाइट कीजिए, उसमें से रिवाइज कीजिए। Why the hell do you need to make notes? वो भी सेबी के लिए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि रिकॉल बढ़ाना है। तो बहुत इजी अप्रोच है यार। यूज समरी शीट्स व्हेनेवर यू रीड अ चैप्टर, हाईलाइट थ्रू इट so that it can be revised again and again. There is no need to make any notes because you don't have time. You can use this time for something else, as in solving a lot of MCQs, doing descriptive English. Lot of things are to be done. ठीक है, giving a lot of mock test. तो ये मत सोचो कि टाइम है तो बना लेते हैं। अगर हैबिट नहीं है तो टाइम होने पर भी नहीं बनानी है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समथिंग विच इज रेडी फॉर योर रिवीजन। दिस इज योर नोट्स, तो इसको यूज करें। ठीक है गाइस, तो आई होप आई हैव ओपन दिस अप फेयरली।
इसको अच्छे से सुनिए, इसी को इंप्लीमेंट कीजिए. आई एम श्योर दैट मैनेजमेंट कंपोनेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद इन 7 days. 7 days easily and you can score good marks there. और एक चीज याद रखिएगा, obviously you will face lot of hurdles in your entire preparation, but trust me, you should know that your only limit is your mind. बहुत बार हम सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना ही कर पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, but your mind is your only limit. Remember that. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कभी कभी मैं रनिंग के लिए जाता हूं, सो मैं नॉर्मली 1-2 किलोमीटर ही भाग पाता हूं. सो मुझे वो 2 किलोमीटर भागने में ही ऐसा लगता है कि बस, मतलब 1 किलोमीटर के बाद जब 1 किलोमीटर रह जाए तो ऐसा लगता है कि बस अब किस तरह ही खत्म हो जाए. आई एम जस्ट अबाउट टू डाई. वन डे आई वेंट विद माई फ्रेंड, उसने बोला 4 किलोमीटर भागेंगे. आई वॉज लाइक यार मैं तो नहीं भाग पाऊंगा, बिल्कुल नहीं भाग पाऊंगा. उसने बोला नहीं तू भागेगा आज. ही फोर्स मी लाइक नाउ ऑल आवर फ्रेंड्स डू. आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे. तो हमने भागना शुरू किया. आई ऑलमोस्ट बिलीव मैं नहीं भाग पाऊंगा. मैं नहीं भाग पाया. वैसे मैं 3.5 किलोमीटर ही भाग पाया. कुड नॉट रन 4 किलोमीटर्स. बट यू नो अर्लियर आई यूज्ड टू गेट दैट फीलिंग कि तू नहीं भाग पाएगा आफ्टर 1 किलोमीटर. बट उस दिन मुझे पता था कि मुझे 4 किलोमीटर भागना है, तो मैं भागे जा रहा था. एंड ओनली आफ्टर 2 किलोमीटर्स आई हैड दैट फीलिंग कि काफी हो रहा है, देख अब छोड़ दे. बट 1 किलोमीटर के बाद मैं आराम से भाग पा रहा था. सो दैट इज व्हाट योर लिमिट, नो समटाइम्स दैट इज व्हाट लिमिट्स योर माइंड समटाइम्स. बिकॉज आपको जब पता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप लगे होते हैं. बहुत देर के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप थक गए हैं. जब आप छोटा ही टारगेट रखेंगे, छोटा ही एम रखेंगे, तो बहुत जल्दी आपको लगेगा आप थक गए हैं एंड यू विल गिव अप. तो इसको हमेशा याद रखिएगा. बहुत अच्छा कोट है, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड, या माइंड इज योर ओनली लिमिट. उसको ट्रेन कर लो, कुछ भी कर सकते हो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.